graphs of some standard functions. So now we are studying graphs of some standard function. Yesterday we have studied every function as a graph, but every graph need not be a function. That we have studied yesterday. Now we have to see graphs of some standard function. Let us say first one is linear function, for which we have already drawn graphs from 7th A standard. We are drawing a line on xy axis, ठीक है, और xy coordinate plane, Cartesian plane. So linear function is of the form y is equal to ax plus b. Obviously here a is not equal to 0. ठीक, then it becomes a linear function. Then in this case, first one a b greater than 0. Then you will get a line like this. Okay, this is the line y is equal to ax plus b, where a and b both are positive. So this is termed as positive slope. This is positive slope. ठीक है, इसका डोमेन क्या होगा? All the real numbers. Range होगा all the real numbers, because this function is defined for all the real numbers. Domain as well as range. Second thing, a greater than 0, b is equal to 0, and this here in this case it is, if we compare with y is equal to mx plus c, then this c is nothing but y intercept. So here it is b, so this y intercept is how much? It is b. But if this constant term b is missing, okay, is missing from this relation, then it becomes what? Y is equal to ax, where a is greater than 0 and b is equal to 0. Then it is a line passing through the origin. Okay, it is a line passing through the origin, making equal angle with positive and negative, with x-axis and y-axis. ठीक, ये हमने कल भी देखा था, y is equal to ax. So it is a line passing through the origin. अब इस केस में भी डोमेन हो जाएगा all the real numbers, range होगा all the real numbers. Again, since a is greater than 0, we are having this type of slope, that is positive slope. If a is less than 0 and b is equal to 0, so b is equal to 0 मतलब लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, and a is less than 0 तो नेगेटिव स्लोप आएगा, मतलब इधर से सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी. यहाँ पर कहाँ पर है? फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में है. ठीक, सो इन दिस केस स्लोप इज पॉजिटिव, इन दिस केस स्लोप इज नेगेटिव. स्लोप इज नथिंग बट y अपॉन x. तो यहाँ पर देखिए y अपॉन x दोनों भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, यहाँ पर दोनों भी नेगेटिव है तो भी स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा. इस केस में पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पर स्लोप हो जाएगा आपका नेगेटिव. a इज लेस देन 0, b इज इक्वल टू 0 मींस पासिंग थ्रू द ओरिजिन. एक फोर्थ केस जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था k इज नॉट इक्वल टू 0, देन इट डजंट रिमेन्स अ लीनियर फंक्शन. If a is equal to 0, it doesn't remains a linear function. क्योंकि a equal to 0 होगा तो क्या हो जाएगा? y is equal to b. And y is equal to b what? It is a constant function. So if a is equal to 0, b is greater than 0, then it becomes y is equal to b, which is a constant function, and this is the value of b. तो ये फिक्स रहेगा, y की वैल्यू फिक्स रहेगी irrespective of x. x चाहे जितना भी वैरी होगा, y की वैल्यू फिक्स रहेगी. सो इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन. इन दिस केस डोमेन इट मींस व्हाट? ऑल द वैल्यूज ऑफ x. सो ऑल वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर x. कुछ भी वैल्यू हो सकती है x की. सो डोमेन इज कंप्लीट सेट R, सेट ऑफ रियल नंबर्स. एंड रेंज इन दिस केस इज व्हाट? इट इज ओनली सेट ऑफ B, क्योंकि y की वैल्यू फिक्स हो जाएगी. कितनी? B. रेंज मतलब क्या होता है? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y, एंड b इज द ओनली पॉसिबल वैल्यू. और कोई वैल्यू यहाँ पर आनी नहीं है y के लिए. तो डोमेन हो जाएगा रियल नंबर्स, रेंज हो जाएगा सेट ऑफ b. सो दिस इज अ लीनियर फंक्शन. अब इसके आगे ठीक है, हम जितने भी ग्राफ्स पढ़ेंगे हम ध्यान में भी रखने की कोशिश करेंगे. बट व्हेनेवर अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि एक पर्टिकुलर फंक्शन है, उसका ग्राफ मुझे याद नहीं आ रहा है, सो यू कैन जस्ट टेक सम पॉइंट्स. ठीक है, एक्स वाई एक्सिस पर आप कुछ पॉइंट्स लेंगे, उसके कुछ वैल्यूज लेंगे और रैंडमली आप प्लॉट करने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले होता है दैट इज कॉल्ड एज ट्रेसिंग ऑफ ए कर्व. ठीक है, उसका एक मैथमेटिकल नाम है दैट इज कॉल्ड एज
ट्रेसिंग ऑफ कर्व। इंजीनियरिंग एम में बहुत बड़ा टॉपिक है इसके ऊपर, ट्रेसिंग ऑफ कर्व। तो हमें अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक देखना होता है कि भाई x जीरो है तो y कितना है, x पॉजिटिव है तो y कितना है, x नेगेटिव है तो y कितना है, ठीक है। तो we take different cases in consideration and we plot those points, those certain points on this xy Cartesian plane, and then we have to join all the points plotted using a freehand curve, and then we will get a graph for that particular function. यहाँ पर हम कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस की बात कर रहे हैं, वो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। तो फर्स्ट हमने लीनियर देखा, अब सेकंड है क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक मतलब y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी a इज नॉट इक्वल टू 0 था, क्वाड्रेटिक में भी a नॉट इक्वल टू 0 होता है, क्यूबिक में भी a नॉट इक्वल टू 0 होता है। Why is it so? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर मान लीजिए क्यूबिक में a की वैल्यू 0 हो गई तो x क्यूब की टर्म मिसिंग हो जाएगी, गायब हो जाएगी, ठीक है, इट विल बिकम 0। then this equation will not remain quadratic, it will not remain cubic, it will become quadratic, ठीक है। ये वाले टर्म अगर निकल गए तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। वैसे ही क्वाड्रेटिक से अगर ये क्वाड्रेटिक वाली x स्क्वायर वाली टर्म निकल गई तो ये लीनियर हो जाएगा, लीनियर से अगर x की टर्म निकल गई तो कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई हमेशा हम कहते हैं अगर इस टाइप में क्वाड्रेटिक है तो a नॉट इक्वल टू 0, क्यूबिक में भी a नॉट इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक फंक्शन में पहले तो एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फंक्शन देखते हैं जो कि है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों जो है दीज आर द पैराबोला। हमने पैराबोला पढ़े, क्या होता है पैराबोला में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4by, वही है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by। यहाँ पर 4b की वैल्यू 1 है, y का कोएफिशिएंट 4b, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by, तो 4b की वैल्यू यहाँ पर 1 है। तो उस तरीके से भी आप देखेंगे देन इट इज अ पैराबोला जो कि ऊपर वाली साइड में ओपन हो रहा है, अपवर्ड पैराबोला। दूसरा होगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। ये दोनों हमने देख लिया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों कैसे है एक्चुअली, b और c दोनों की वैल्यू 0 हो गई, ये दोनों के लिए, ठीक है। ये केस और एक केस बेसिकली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कैसे बना, तो यहाँ पर आपको देखेंगे तो b की वैल्यू और c की वैल्यू दोनों भी 0 है, एंड a इन दिस केस ग्रेटर देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, ठीक है। और एक बोलेंगे अब यहाँ पर अगर पर्टिकुलर बात करें तो a इज इक्वल टू 1 है, पॉजिटिव तो है बट 1 है, y इज इक्वल टू 1 एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, बाकी दोनों टर्म 0। इन दिस सेकंड केस b और c दोनों 0 है, a की वैल्यू -1 है, तो क्या y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। इसका ग्राफ ऐसे आएगा नीचे से। अगर प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ जैसे कि ये फॉर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वी हैव टू फाइंड आउट डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, देन शेप, ठीक है, शेप ऑफ दिस क्वाड्रेटिक फंक्शन रिमेन्स द सेम एज लाइक दिस वन। ये दोनों केस में जैसा है ना, शेप वैसा ही आपको दिखेगा, मतलब a ग्रेटर देन 0 में इस टाइप का दिखेगा, लेस देन 0 में इस टाइप का दिखेगा। शेप सेम होगा, लेकिन थोड़ा सा इसका जो इलॉन्गेशन है, ठीक है, इलॉन्गेशन वो बढ़ता जाएगा फिर कम होता जाएगा डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट वैल्यूज ऑफ a b c। ऑल्सो इट्स वर्टेक्स विल चेंज। मैंने सबसे पहले बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज आपसे डिस्कस किया हुआ था कि अगर किसी भी फंक्शन में कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसका मतलब कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, देन the graph of that particular function always passes through the origin, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। जहां पर भी देखिए इधर ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा क्योंकि कांस्टेंट है, इधर भी, इधर कांस्टेंट 0 हो गया ओरिजिन से पास हुआ, कांस्टेंट 0 हो गया ओरिजिन से पास हो रहा, ठीक है। यहाँ पर कांस्टेंट 0 नहीं है तो फिर ओरिजिन से पास नहीं होगा। यहाँ पर देखिए कांस्टेंट टर्म 0 है, c, b की बात नहीं कर रहे हम c की बात कर रहे हैं, कांस्टेंट c 0 है, ओरिजिन से पास होगा। यहाँ पर भी c की वैल्यू 0 है, ओरिजिन से पास होगा, ठीक है। इस केस में क्योंकि यहाँ पर c है जो 0 नहीं है, नॉन 0 है, इन दिस केस वी विल फाइंड आउट डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा
एंड द वर्टेक्स विल बी एट दिस पॉइंट। वर्टेक्स कहां पर होगा? माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डेल्टा अपॉन 4a। यहाँ पर डेल्टा आपने निकाल लिया है, डिवाइड करेंगे 4a से, देन यू विल गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ दिस पैराबोला। ठीक है, या फिर हम बोले क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो भी ग्राफ इसका बनना है। देखिए फर्स्ट केस में a पॉजिटिव है मतलब ग्रेटर देन 0 है तो अपवर्ड ओपनिंग होगा, a नेगेटिव है डाउनवर्ड ओपनिंग होगा। a पॉजिटिव है अपवर्ड ओपनिंग हुआ, a नेगेटिव है डाउनवर्ड ओपनिंग हुआ। a पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0 अपवर्ड ओपनिंग हुआ, a नेगेटिव है डाउनवर्ड ओपनिंग हुआ। ये तो हुआ वैल्यू ऑफ a के ऊपर क्या डिपेंड करता है। ठीक, और वैल्यू ऑफ b से आप देखिए, या फिर डेल्टा से हम समझेंगे अभी। डेल्टा से, डेल्टा क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, वर्टेक्स तो आपको यहाँ पर मिलना है, और वर्टेक्स ऑब्वियसली ओरिजिन नहीं है, वर्टेक्स ओरिजिन नहीं होगा, वर्टेक्स होगा इस पॉइंट पर, ये आप कैलकुलेट करेंगे। और डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ डेल्टा यू विल गेट द डिफरेंट शेप्स। जैसे यहाँ पर डेल्टा ग्रेटर देन 0 है, इधर डेल्टा यहाँ पर भी ग्रेटर देन 0 है, इधर डेल्टा अगर इक्वल टू 0 होगा तब ये एक्सिस को टच कर जाएगा, एक्स एक्सिस को टच कर जाएगा, क्योंकि डेल्टा इक्वल टू 0 मतलब यहाँ पर आप डेल्टा की वैल्यू 0 डालेंगे तो वर्टेक्स जो है, वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो ये एक्स एक्सिस को टच करेगा। ठीक, अगेन यहाँ पर भी डेल्टा इक्वल टू 0 है तो एक्स एक्सिस को टच करेगा। यहाँ पर डेल्टा लेस देन 0 है तो ये ऊपर शिफ्ट हो गया। ठीक है, डेल्टा लेस देन 0 तो नीचे शिफ्ट हो गया। तो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ भी समझ सकते हैं। और अगेन फॉर डिफरेंट वैल्यूज यू कैन, अगर हमें प्लॉट करना है तो हम वर्टेक्स निकाल लेंगे, शेप जस्ट चेक लेंगे, वर्टेक्स निकालेंगे, एक्स की डिफरेंट वैल्यू, वाई की डिफरेंट वैल्यू, विल फाइंड आउट। हम 3 4 5 पॉइंट स्पेसिफिक पॉइंट्स अगर प्लॉट करते हैं यू विल गेट द रिक्वायर्ड शेप ऑफ दैट कर्व। क्वाड्रेटिक के लिए हुआ। अब क्यूबिक के लिए, क्यूबिक इक्वेशन ax³ bx² cx d a नॉट इक्वल टू 0। फर्स्ट केस में जैसे हमने क्वाड्रेटिक में डिस्कस किया था y इज इक्वल टू x², वैसे ही यहाँ पर y इज इक्वल टू x³। ठीक है, y इज इक्वल टू x³, तो a की वैल्यू 1 हो गई, b c d 0 हो गई। इसका शेप इस टाइप से होता है। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। दिस इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। अब ये सारे इंजीनियरिंग मैथ्स में आप पॉइंट पढ़ेंगे। सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, अगर x की पावर 3 होगी और y की पावर 1 होगी देन इट इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। और अगर y इज इक्वल टू x² होगा देन इट इज सिमेट्रिक अबाउट पॉजिटिव y एक्सिस, और इट इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। लेट अस से ऐसा कर सकते हैं आप। ठीक, दिस इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, दिस इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, मतलब इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। अब x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, अगर x नेगेटिव होगा तो y भी नेगेटिव होगा। यहाँ पर क्या था, x जब पॉजिटिव था तब भी y पॉजिटिव था, x जब नेगेटिव हुआ तो भी y पॉजिटिव हुआ, बिकॉज y इज व्हाट, स्क्वायर ऑफ x। तो x पॉजिटिव रहे चाहे नेगेटिव, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यूब में ऐसा नहीं होता, x पॉजिटिव रहा तो क्यूब पॉजिटिव, x नेगेटिव रहा तो क्यूब नेगेटिव। सो दिस इज क्यूबिक इक्वेशन, y is equal to x³। Again, domain is all the real numbers, range is all the real numbers. दूसरा केस इसमें हम स्टडी करते हैं। यहाँ पर भी a ग्रेटर देन 0 है, इधर भी a ग्रेटर देन 0 है। कोई भी आप इक्वेशन निकालिए, let us say a is greater than 0. Then we get these two types of graphs for a cubic function. ठीक है, क्यूबिक फंक्शन के लिए ये जस्ट इट इज अ शेप, इट इज एक शेप है बस। ठीक है, एग्जैक्टली इस टाइप का शेप रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ ABCD थोड़ा सा शेप उसका वेरी होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसमें क्या है वो समझिए, ये जो कर्व है, ठीक है, दिस कर्व y इज मतलब क्यूबिक फंक्शन का कर्व, दिस पर्टिकुलर कर्व इज क्रॉसिंग द x एक्सिस एट ओनली 3 पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स पर? 3 पॉइंट्स पर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 3 रूट्स होंगे इसके। क्यूबिक है तो रूट्स कितने होने चाहिए? 3 रूट्स होने चाहिए। तो ये 3 रूट्स है, पहला, दूसरा, तीसरा। या फिर दूसरी केस में इस टाइप का आपको ग्राफ मिलेगा
जिसमें कि खाली एक ही रूट होगा, बाकी दो रूट नहीं होंगे, यह ऐसे निकल गया आगे। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ, या फिर y इज इक्वल टू क्यूबिक फंक्शन। तो यहाँ पर एक सिंगल रूट आया। अब यहाँ पर क्यूबिक रूट की जैसे हमने प्रॉपर्टी डिस्कस किया है कि भाई अगर क्वाड्रेटिक होगा तो दो रूट्स, ठीक है, क्यूबिक हुआ तो तीन रूट्स, बाय क्वाड्रेटिक हुआ तो चार रूट्स। दैट इज द बेसिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ अलजेब्रा। ठीक, तो यहाँ पर एक दो तीन रूट्स है, यहाँ पर एक ही रूट है, तो इसके दो रूट किधर गए? होने तो चाहिए तीन, ग्राफ में क्यों नहीं दिख रहे बताइए। ठीक, जैसे हमने डिस्कस किया, डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा तो रियल एंड इक्वल रूट ये है, फिर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो हुआ तो रियल एंड अनइक्वल रूट पहला, ये दूसरा, यहाँ पर पहला यहाँ पर दूसरा। जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होता है, सो व्हाट वी से दैट नो रियल रूट्स, मतलब रूट्स कैसे है? इमेजिनरी। तो रूट्स अगर इमेजिनरी है तो एक्स एक्सिस पर कहीं पर भी देखिए आपको ये वाला ग्राफ टच नहीं करेगा, इधर भी एक्स एक्सिस पे टच नहीं करेगा। सेम केस हैपेंस विद दिस वन। क्यूबिक रूट्स में अगर या तो तीनों रूट्स पॉजिटिव, मतलब तीनों रूट्स रियल होंगे, क्यूबिक रूट्स में तीनों भी रूट्स रियल होंगे, एक दो तीन, या फिर दूसरी केस ये बनती है कि एक रूट रियल होगा और दूसरे जो दो है दे विल बी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स। ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट हो गए। और हम तो बात कर रहे हैं रियल नंबर सिस्टम की, ये कोई आर्गन्स डायग्राम नहीं है, इट इज अ कार्टेशियन प्लेन। कॉम्प्लेक्स नंबर हम कहां पर दिखाते हैं? आर्गन्स डायग्राम में। दिस इज कार्टेशियन प्लेन, रियल प्लेन, एक्स वाई प्लेन। तो इसमें एक ही रियल रूट है और बाकी दो इमेजिनरी है, इसलिए यहां पर दिखाई नहीं देंगे आपको। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये वाला टॉपिक हमने पढ़ा था, उसमें देखा था कि एनी अगर कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे सो दे ऑलवेज ऑकर इन पेयर्स। मतलब ये जैसा आप बोलेंगे सर फिर यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता है क्या इस केस में दो रियल और एक कॉम्प्लेक्स? नो, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा पेयर में ऑकर होते हैं, एक ही सॉक्स पहन के हम घर से निकलेंगे नहीं, समझ में आ रहा है? एक ही सॉक्स पहन के घर से निकलने वाले नहीं है, दोनों सॉक्स जरूर, जैसे सब मतलब कुछ चीजें पेयर्स में ही ऑकर होती है। सो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑलवेज ऑकर्स इन पेयर्स। तो यहाँ पर वो पेयर में होंगे, तो दो इमेजिनरी होंगे, एक रियल हुआ। ठीक, यहाँ पर हमने पढ़ा क्यूबिक फंक्शन। अब बात करते हैं स्क्वायर रूट फंक्शन की। स्क्वायर रूट फंक्शन मतलब y इज इक्वल टू रूट एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू रूट एक्स। तो यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है y इज इक्वल टू रूट एक्स का, एंड ऑलवेज वी हैव टू एज्यूम वैल्यू ऑफ y एज पॉजिटिव। तो रूट एक्स हम हमेशा कैसा लेते हैं? पॉजिटिव। x की जो वैल्यू होगी इट विल बी पॉजिटिव, अंडर रूट में मतलब कैसी होगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब जीरो से लेके इंफिनिटी तक डोमेन रह जाएगा, और रेंज भी कहां पर होगा आपका? इसका रूट भी हम पॉजिटिव रूट कंसिडर करेंगे ओनली, सो इट इज पर रेंज इज इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटी अगेन। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू रूट एक्स। ठीक, now next fifth graph is cube root function. Cube root function means y is equal to cubic root of x. So let us say y is equal to x raised to 1 by 3. ठीक है, y is equal to x raised to 1 by 3, तो ये हो जाता है क्यूबिक रूट। नाउ क्यूबिक रूट में अगर x पॉजिटिव होगा तो उसका क्यूबिक रूट पॉजिटिव होगा, अगर x निगेटिव होगा तो उसका क्यूबिक रूट निगेटिव होगा। ठीक है, so we get graph of this function in first and third quadrant, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो इस तरीके से इसका शेप होता है, डोमेन कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर्स, रेंज कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट वन इज रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन इज नथिंग बट y इज इक्वल टू 1 अपॉन x। ठीक है, अब देखिए ये इस टाइप के जो भी हमने फंक्शन देखे ना, वहां पर आप कुछ भी अलग अलग वैल्यूज लेकर के देखिए, यू विल गेट दिस शेप। ये शेप आपको मिल जाएगा। x को 1 लिया तो इधर y भी 1 हो जाएगा, x को 2 लिया तो y 8 हो जाएगा, लाइक दैट क्यूबिक रूट। सॉरी, ये क्यूबिक रूट है ना, 1 का क्यूबिक रूट 1, फिर अगर आपने 8 लेंगे तो 8 का क्यूबिक रूट 2 हो जाएगा। इस तरीके से तो हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं।
अब रैशनल फंक्शन की अगर बात करें y इज इक्वल टू 1/x इज अ रैशनल फंक्शन। और जब फंक्शन ये वाला लिखते हैं तभी हम यहाँ पर एक चीज मेंशन करेंगे, x नॉट इक्वल टू 0, है कि नहीं? ये लिखना ही होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि कोई भी रैशनल फंक्शन में जब कभी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की बात होगी तो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। सो दिस फंक्शन, क्योंकि अगर 0 हो गया तो y विल बिकम 1/0 मतलब इनफाइनाइट, ठीक है, अनडिफाइंड हो जाएगा। अब इस केस में रैशनल फंक्शन के केस में आपको ग्राफ इस तरीके से मिलेगा। अगेन इट इज इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। x पॉजिटिव होगा तो y की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, x नेगेटिव होगा तो y की वैल्यू भी नेगेटिव होगी। तो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ का शेप देखिए कैसा है। ग्राफ का शेप इस तरीके से है कि जैसे जैसे एक जहां पर x 0 है तो y इंफिनिटी है, ठीक है, और जैसे जैसे y अगर 0 की तरफ जा रहा है तो x इंफिनिटी हो जाएगा। x एंड y बोथ आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर इन दिस केस, दे आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। तो x अगर 0 होगा तो y इंफिनिटी, y जब 0 होगा तो x इंफिनिटी होगा। पॉजिटिव में जैसे वैसे निगेटिव में, x की वैल्यू निगेटिव होगी तो y की वैल्यू भी निगेटिव हो जाएगी। कंसेप्ट वही है, x 0 y इंफिनिटी, और जब y 0 हो जाएगा, y इधर 0 होगा, ठीक है, y इस पॉइंट पे 0 होगा, जब y 0 होने जाएगा तो x आपका हो जाएगा इंफिनिटी। तो 0 एंड इंफिनिटी का रेसिप्रोकल रिलेशन हमको यहाँ पर मिलेगा। तो डोमेन और रेंज क्या हुआ? फिर डोमेन जैसे हम यहाँ पर डोमेन देख पा रहे हैं, दिस इज बेसिकली डोमेन। x नॉट इक्वल टू 0 मतलब बाकी कुछ भी चलेगा, 0 नहीं चलेगा। सो दैट इज रिटन लाइक दिस, r माइनस सेट ऑफ 0। r माइनस 0 नहीं लिखेंगे, r माइनस 0 हैज डिफरेंट मीनिंग, दिस इज r माइनस सेट ऑफ 0। तो एक सेट है 0 माइनस हो जाएगा, और रेंज में भी r माइनस सेट ऑफ 0, रेंज भी वही आएगा क्योंकि y भी और x भी दोनों भी 0 नहीं हो सकते। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब y is equal to a raised to x. So here a is always greater than 0. Now whatever log we have studied, अगर आप अभी भी अगर वापस फिर से आप 7th और 8th की बुक आप खोलेंगे तो उसमें आप देखेंगे log of indices, they are defined for value of a greater than 0, and these are log of indices or statements are all true if a is greater than 0, xy belongs to R, ठीक। तो हमने यहाँ पर दो तरीके से ग्राफ निकाला, दिस इज y इज इक्वल टू a raised to x, दिस इज आल्सो y इज इक्वल टू a raised to x, बट डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ a वी गॉट टू डिफरेंट शेप्स। यहाँ पर हुआ a ग्रेटर देन 1 के लिए आपको इंक्रीजिंग फंक्शन मिलेगा। अब एक वर्ड ध्यान में रखिएगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आएगा इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब जैसे जैसे x बढ़ते जा रहा है आप देख पाएंगे वैसे वैसे y भी बढ़ते जा रहा है, ठीक है। As soon as x is increasing, y is also increasing. So this is called as increasing function. तो ये greater than 1 में आपको इस टाइप का फंक्शन मिलेगा। x इंक्रीज होगा तो a raised to x की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। Similarly इधर y is equal to a raised to x, a is less than 1, 0 से बड़ा तो है ही because a is positive, ठीक है, a is positive, so it is between 0 and 1 अगर होगा value of a, then it becomes a decreasing function। मतलब जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे y की वैल्यू कम होते जाएगी। सो दिस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। दोनों भी केस में आप देखेंगे जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 है। मैंने यहाँ पर कहीं पर भी जैसे किधर भी अगर कहीं पर कट किया होगा तो मैंने पॉइंट का नाम नहीं दिया कि 1 पे कि 2 पे, जैसे यहाँ पर 1 2 ऐसा कुछ लिखा नहीं मैंने, लेकिन यहाँ पर 1 लिखा है। क्यों? जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी? a raised to 0, and a raised to 0 is how much? It is 1. Similarly here also, जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो y की वैल्यू होगी a raised to 0 मतलब 1। तो शेप तो ऐसे ही रहेगा बट इस पॉइंट पे फिक्स रहेगा, and this a raised to x greater than is always greater than 0, ठीक है, it is always positive for all values of x। x की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है? या तो पॉजिटिव वैल्यू होंगी, या तो नेगेटिव होंगी, या फिर 0 होगी। डोमेन x का पूरा रियल नंबर, सारे रियल नंबर्स x के डोमेन में, तो उन सब के लिए y की जो वैल्यू होगी इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0।
इक्वल टू जीरो भी नहीं आएगी, जीरो को भी टच नहीं करेगा वो, इक्वल टू जीरो भी नहीं आएगी, ग्रेटर देन जीरो, ऑलवेज पॉजिटिव। जस्ट फॉर एग्जांपल एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए यहाँ पर एक फंक्शन हमें सॉल्व करना है, ठीक है, ये वाला फंक्शन है, लेट अस सॉल्व दिस। नाउ इफ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वी विल हैव टू यूज लॉज ऑफ इंडाइसेस। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। अभी यहाँ पर देखिए दिस इज 9 रेज़ टू x, so it can be written as 3 square bracket raised to x. This is 6 raised to x, so it can be written as 3 into 2 bracket raised to x. This is equal to 2 into, this is 4 raised to x, so it is 2 raised to 2 bracket raised to x. ठीक है, अब इसी को अलग तरीके से हम लिखते देखिए, दिस इज 3 स्क्वायर ब्रैकेट रेज़ टू x, so it can be written as 3 raised to x bracket square plus इधर 3 into 2 bracket raised to x can be written as 3 raised to x into 2 raised to x, and this is equal to, this is 2 into 2 into, अब 2 raised to 2 raised to x, it can be written as 2 raised to x bracket square. Laws of indices, a raised to m raised to n is equal to a raised to mn. तो हम ये पावर्स इंटरचेंज भी इधर उधर कर सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, the first term 3 raised to x bracket square plus this is second term 3 raised to x into 2 raised to x, यह टर्म इधर आएगी तो हो जाएगी माइनस 2 into 2 raised to x bracket square is equal to 0. Now we have to solve this. Let us assume 3 raised to x as a and 2 raised to x as b. Then this equation will become a square plus ab minus 2b square, which is equal to 0. अब इस टाइप का जो इक्वेशन होता है, हम जैसे क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं उसी तरीके से इसे आपको सॉल्व करना होता है। हमें यहाँ पर -2 के फैक्टर देखने हैं, -2 के ऐसे दो फैक्टर जिनकी सम +1 होना है। देखिए यहाँ पर बीच में 1 है, कोएफिशिएंट 1 है, +1 होना, और वो कब मिलेगा आपको, 2 - 1 जब करेंगे, ठीक। सो इट इज फैक्टर्स हो जाएंगे आपके 2 - 1, मतलब इसके फैक्टर्स हम लिखेंगे a + 2b और a - 1b, a + 2b a - 1b, मतलब a - b, which is equal to 0, ठीक। इक्वल टू ग्रेटर देन का तो नहीं आया था ना, ठीक। अब ये जो हमने लिखा है यहाँ पर, जितना भी अभी सॉल्व किया, हमें वी हैव टू फाइंड आउट, सॉल्व करना है मतलब क्या करना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक। अब जब लॉज ऑफ इंडाइसेस हम लेते हैं, a और b यहाँ पर आपने दिया, 3 raised to x a है, 2 raised to x b है, सो इट मींस व्हाट, a एंड b बोथ आर ग्रेटर देन 0, क्योंकि a raised to x हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। सो दिस इज a raised to x, दिस इज आल्सो a raised to x, सो दीस टू वैल्यूज आर ग्रेटर देन 0, तो देयरफॉर a + 2b भी आपका ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। मैं साइड में लिखता हूँ यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन, सिंस a + 2b, या फिर हम बोले पहले a लिखते हैं, सिंस a ग्रेटर देन 0, कॉमा b ग्रेटर देन 0, देयरफॉर a + 2b इज आल्सो ग्रेटर देन 0। a पॉजिटिव है, b पॉजिटिव है, तो a + 2b क्या होगा, वो भी पॉजिटिव होगा, सो दिस इज आल्सो ग्रेटर देन 0, दिस कैन नॉट बी 0। इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पर 0 है, तो जनरली हम क्या करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0 और सेकंड ब्रैकेट इक्वल टू 0, इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। बट यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट 0 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, a पॉजिटिव b पॉजिटिव, तो a + 2b भी पॉजिटिव होगा, मतलब ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, और देयरफॉर हम यहाँ पर लेंगे कि a - b इक्वल टू 0 हो सकता है। दोनों ग्रेटर देन 0 है, दोनों पॉजिटिव है, तो दो पॉजिटिव नंबर का सब्ट्रैक्शन 0 हो सकता है, बट एडिशन कभी भी 0 नहीं हो सकती। तो a - b अगर इक्वल टू 0 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, a इज इक्वल टू b, ठीक है। अब a मतलब क्या है, 3 raised to x, b मतलब 2 raised to x, तो वैल्यू पुट कर देंगे, a मतलब 3 raised to x, b मतलब 2 raised to x,
So 3 raised to x equal to 2 raised to x. So therefore ये कब पॉसिबल होगा? When x is equal to 0. और किसी भी वैल्यू के लिए ये दोनों चीजें सेम नहीं हो सकती। x की वैल्यू जब 0 होगी तो 3 raised to 0 1, 2 raised to 0 1। ठीक, इस पॉइंट से a raised to x या फिर a raised to 0 is equal to 1। तो दोनों भी इक्वल कब होंगे? जब x की वैल्यू 0 होगी। सो दैट इज योर सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। Okay, so last function, that is standard function, is logarithmic function. ठीक है, logarithmic function. Now see, logarithmic function and exponential functions, they are interrelated, or what you can say, they are inverse of each other. Logarithmic function and exponential functions are inverse of each other. So y is equal to log x to the base a if and only if x is equal to a raised to y. So this is basically definition of log. This is nothing but it is a definition of log. अगर x is equal to a raised to y होगा, then this y is equal to log x to the base a. तो आप ऑब्जर्व करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब हम नंबर लिखते हैं कोई भी, तो दिस a is called as what? It is called as base, and this y is nothing but power or exponent. Therefore it is called as exponential function. तो जो बेस इस केस में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो बेस a है, इट रिमेन्स द बेस ऑफ ए लॉग। ठीक है, तो x is equal to a raised to y होगा, इट मींस व्हाट? y is equal to log x to the base a. So both are having same meaning. In this case a is greater than 0. हमने पहले पढ़ा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। x is also greater than 0. x is also greater than 0 क्योंकि a raised to x का जो आंसर आता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो x is greater than 0 and a is not equal to 1 if this logarithmic function has to be defined. A is called as base of logarithm and in this case a drawn graph for both the cases. यहाँ पर 0 less than a less than 1 है, तो logarithmic function का ग्राफ ऐसे डिक्रीजिंग टाइप आता है, ये कम होते होते जाएगा। सो जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे log x to the base a डिक्रीज हो रहा है। कब? जब a लेस देन 1 होगा। अगर a ग्रेटर देन 1 होगा देन वी गेट व्हाट? जैसे जैसे x इंक्रीज होगा log x to the base a भी इंक्रीज होगा। सो इट इज अ एक्सपोनेंशियल, मतलब हम बोलेंगे कि इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। log x to the base a is defined for only positive values of x. log x to the base अगर हम a लेते हैं तो इसका मतलब x कैसे होना चाहिए? It should be always positive. In other language, नेगेटिव नंबर का log एग्जिस्ट नहीं करता है। नेगेटिव नंबर का log एग्जिस्ट नहीं करता है। तो किसी भी नंबर का log अगर एग्जिस्ट करना के लिए क्या कंडीशन है? वो नंबर मतलब कि x should be a positive real number. Positive real number. समझे? Positive values of x. And this can be also written as x belongs to r plus. R plus means these are positive real numbers. R minus होगा तो negative real numbers. और एक होता है जो कि पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है, दैट इज 0। ठीक, x की वैल्यू जब 0 होगी तब भी ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन, x की वैल्यू यहाँ पर 0 है तो y कितना हो रहा है? माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। इधर जब x 0 होगा तो y प्लस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। So इसका मतलब logarithmic function is also not defined for x equal to 0. It is defined for only x greater than 0 or x belongs to r plus positive real numbers. ये दोनों उसका शेप है। अब ये जो वैल्यू यहाँ पर 1 आई है, दिस वैल्यू 1, हमने रूल्स पढ़ा हुआ है log 1 to the, अच्छा इसमें नहीं लिखा, मैं एक और रूल इसमें ऐड कर देता हूँ, log 1 to any base is always 0. log 1 to any base is always 0. अब देखिए लॉगरिथम में इस डेफिनेशन से अगर आप देखेंगे, सो दिस 1 is equal to what? a raised to 0 होता है ना।
तो a रेस टू 0 अगर 1 होगा तो इसका मतलब log 1 टू द बेस a 0 होगा। तो इसलिए यहाँ पर भी x की वैल्यू 1 है तो लॉगरिथमिक फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। दिस इज वैल्यू ऑफ y, है ना, विच इज 0। वैल्यू ऑफ x इज 1, वैल्यू ऑफ y इज 0। यहाँ पर आपका ओरिजिन है। सो log 1 इज ऑलवेज 0। सो देयरफॉर x अगर 1 होगा तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, x 1 होगा तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। नेक्स्ट थिंग, रूल्स ऑफ लॉगरिथम। एग्जांपल भी हम सॉल्व करने वाले इसके ऊपर। रूल्स ऑफ लॉगरिथम, log of mn to the base a is equal to log m plus log n। अब मैं जो बेस a इधर लिखा हुआ है मैंने हर एक जगह पर, ये जरूर नहीं है कि मैं उसको ध्यान में रखूं। बस एक चीज ध्यान में रखना है कि जो बेस लेफ्ट हैंड साइड पर होगा वही बेस राइट हैंड साइड पर जाएगा। मान लीजिए अगर इधर log mn to the base a है, so it will become log m to the base a plus log n to the base a। तो जब हम लर्न करते हैं या फिर जब हम बोलते हैं इस फार्मूला को, हम इसी तरीके में बोलते हैं log mn इक्वल टू log m प्लस log n। ठीक, बेस की हम बात नहीं करेंगे। इट इज एज्यूम्ड इट इज सेम ऑन बोथ द साइड्स फॉर ऑल दिस formulas or all these properties or rules of logarithm. Log m upon n is equal to log m minus log n। log m raised to n is equal to n log n। तो इस केस में क्या हो जाता है, ये n आपका यहाँ पर नीचे आ जाएगा। So log m raised to n equal to n log m। Similarly, log a to the base a is equal to 1। मतलब log 10 to the base 10 होगा तो 1। log 100 to the base 100 1। Next, log x to the base a is equal to 1 upon log a to the base x। log x to the base a is equal to 1 upon log a to the base x। ये वाला और एक इंपॉर्टेंट चीज है a रेस टू log। ठीक है, a रेस टू log ऑफ x to the base a। तो यहाँ पर जो हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी है, लॉगरिथमिक फॉर्म भी। एक्सपोनेंशियल मतलब a रेस टू समथिंग, तो यहाँ पर a रेस टू समथिंग आया। सो a रेस टू log x to the base a। और ये जो एक्सपोनेंशियल है इसका बेस a रेस टू log है, log का बेस भी अगर a होगा, then in this case answer of this particular function is this much, that is x। ठीक है, अगर यहाँ पर y होता था तो y, whatever जो भी नंबर होगा, 10 होगा तो 10। and last one, that is called as change of base formula। change of base formula, log m to the base a is equal to log m upon log a। ठीक है, log m to the base a is equal to log m upon log a। और फिर इसका बेस क्या होगा, यहाँ पर मुझे बेस मैं अपने मन से कुछ भी ले सकता हूं। अगर मुझे बेस b लेना है तो दोनों का बेस में b लिख दूंगा, c लेना है तो हम c भी ले सकते हैं। ठीक है, log m to the base a is equal to log m upon log a। दोनों का बेस जो भी हमें चाहिए हम कर सकते हैं। सो इस लास्ट वाले में हमने क्या किया, बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड पर बेस क्या था a, मुझे चेंज करना था तो मैंने राइट हैंड साइड पर अब देखिए b हो गया। या फिर आपको c चाहिए, 10 चाहिए, 15 चाहिए, 5 चाहिए, हम कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड लाइक चेंज ऑफ बेस फार्मूला। सो दिस इज अबाउट लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, दिस इज अबाउट लॉगरिथमिक फंक्शन। ध्यान में रखिए नेगेटिव नंबर का लॉग एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, जब अगर x 0 होगा तो भी log एग्जिस्ट नहीं करेगा। x की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 चाहिए, तभी log x डिफाइन होगा। तो हो गया log x डिफाइन। अब अगर a लेस देन हुआ तो डिक्रीजिंग, a ग्रेटर देन 1 हुआ तो इंक्रीजिंग। और फिर रूल्स ऑफ लॉगरिथम। सो यूजिंग दीज रूल्स वी कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स बेस्ड अपॉन लॉगरिथम्स। एक्सरसाइज में है, हम प्रॉब्लम्स लेंगे आराम से। ठीक, अब यहाँ पर जैसे क्वेश्चन दिया है, so we have to solve this। solve log of bracket is equal to log of bracket। ये हमें सॉल्व करना है। फर्स्ट थिंग, एक तो सिंपल चीज क्या है कि रिमूविंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, रिमूविंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, फिर ब्रैकेट और ब्रैकेट दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, हम सॉल्व कर लेंगे। सो दैट इज फाइन, दैट इज ओके। बट जब हम फंक्शन और डिटेल में सॉल्व करते हैं तो उसके लिए कंडीशन क्या है, डोमेन की तरफ हमें बहुत ध्यान देना होगा। कंडीशन क्या है, log x is defined
ओनली व्हेन x इज पॉजिटिव रियल नंबर। तो इसका मतलब अगर इस पर्टिकुलर फंक्शन में यहाँ पर अगर लॉग की बात हो रही है तो ये वाला ब्रैकेट जो है ये भी ग्रेटर देन 0 होगा, तो दूसरा ब्रैकेट ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो अब उसे लेते हैं फिजिबल रीजन, दैट इज कॉल्ड एज फिजिबल रीजन फॉर द फंक्शन टू बी डिफाइंड इज। पहले तो हमें ये देखना होगा कि फंक्शन डिफाइन होने के लिए क्या कंडीशन है, ये दोनों ब्रैकेट ग्रेटर देन 0 होने चाहिए साइमल्टेनियसली, मतलब ये भी एंड ये भी। तो ये पहला ब्रैकेट जो है दैट इज x² - 6x + 7 ग्रेटर देन 0 एंड x - 3 शुड आल्सो बी ग्रेटर देन 0। तो यहां से हमें फिजिबल रीजन मिलेगा, फिजिबल रीजन। ठीक, चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर x - 3 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या हुआ, x ग्रेटर देन 3। ये तो मिल गया ना आंसर। इधर क्वाड्रेटिक है, और इस टाइप का क्वाड्रेटिक हम कैसे सॉल्व करते थे, इसके फैक्टर्स निकालते हैं। बट इस पर्टिकुलर केस में आपके फैक्टर्स नहीं निकल रहे। देखिए आप 7 के ऐसे फैक्टर जिनकी सम -6 होनी है, कोई फैक्टर्स ऐसे है नहीं। सो दिस कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग टू मेथड्स, दो मेथड से कर सकते हैं। या तो हम फार्मूला मेथड से इसके फैक्टर्स निकाल ले, फार्मूला मेथड से फैक्टर्स निकाल सकते हैं, या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी आप कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए 3 मेथड है। ऑलवेज इजी फैक्टराइजेशन, बट जब फैक्टराइजेशन नहीं होगा तो उस केस में हमें कुछ अलग चीज तो करनी पड़ेगी, सॉल्व तो करना है। तो वहां पर हम या तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर सकते हैं या फिर फार्मूला मेथड से कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं फार्मूला मेथड से करता हूं तो x क्या हो जाएगा, -b, ठीक है, -b ± √b² -4ac, ठीक है, b² -6 का स्क्वायर 36 -4ac, तो 4 × 1 × 7 दैट इज 28 डिवाइडेड बाय 2a -b ± √b² -6 का स्क्वायर -4ac, तो -4 × 1 4 × 7 28। So this is equal to what? +6 ± 36 - 28. So it is 8 upon 2. So this comes out to be 6 ± √8 means 2√2 divided by 2. 2 से जब आप इसको कट करेंगे so it will become 3 ± √2. 3 ± √2. तो ये क्या हुए, these are roots. These are roots. तो फैक्टर क्या होंगे, फैक्टर हो जाएंगे x, या फिर रूट्स चलिए अलग तरीके से, और एक बार में प्लस और माइनस दोनों अलग अलग लिख देता हूँ, 3 + √2 और 3 - √2, ये दोनों रूट्स हो गए। These are values of what? x. तो फैक्टर जो होते हैं आपके, फैक्टर्स में आपको क्या करना होता है, x माइनस के फॉर्म में होते हैं, तो ये दोनों भी आपको इधर लेके आना पड़ेगा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर हो जाएंगे x - 3 - √2 और x - 3 + √2। सो दिस इज ग्रेटर देन 0, ये फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, दीज आर द फैक्टर्स, x - 3 - √2, x - 3 + √2, ये हो गए फैक्टर्स। कैसे होना चाहिए, दोनों भी ग्रेटर देन 0। ठीक है, ग्रेटर देन 0 मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए पॉजिटिव। अब दोनों का पॉजिटिव मल्टीप्लिकेशन कब होगा, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे। तो इस केस में अगर हम केस पहला वाला डिस्कस करते हैं जहां पर कि दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव हमने ले लिया, सो इट मीन्स व्हाट, यहाँ पर ग्रेटर देन 0 रहेगा, एंड तो यहाँ पर हो जाएगा x ग्रेटर देन 3 + √2, इधर होगा x ग्रेटर देन 3 - √2, x ग्रेटर देन 3 + √2, x ग्रेटर देन 3 - √2। तो दोनों चीजें ट्रू होने के लिए मुझे लेना होगा x ग्रेटर देन 3 + √2।
सेकंड केस में इसी वाले को मतलब x माइनस 3 माइनस रूट 2 लेस देन 0 एंड x माइनस 3 प्लस रूट 2 इज ऑल्सो लेस देन 0। यहाँ पर हो जाएगा x लेस देन 3 प्लस रूट 2, इधर मिलेगा आपको x लेस देन 3 माइनस रूट 2। तो दोनों चीजें ट्रू होने के लिए अगेन आपको ये आंसर हो जाएगा x लेस देन 3 माइनस रूट 2। इससे छोटा होगा तो ऑब्वियसली इससे भी छोटा हो जाएगा। यहाँ पर भी अगर ये बड़ा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, इन दोनों में आपको कंपेयर करना पड़ेगा। इन दोनों का कॉमन सोल्यूशन निकालने के लिए इन दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। इन दोनों में बड़ा कौन है 3 प्लस रूट 2, तो उससे बड़ा ले लीजिए। इन दोनों में छोटा कौन है 3 माइनस रूट 2, तो उससे छोटा ले लीजिए। ठीक, तो ये दो मेरे सोल्यूशन यहाँ पर मुझे मिलते हैं कि 3 प्लस रूट 2 से बड़ा या फिर 3 माइनस रूट 2 से छोटा। ठीक, अब कॉमन सोल्यूशन हमें ढूंढना पड़ेगा। कॉमन सोल्यूशन इन दोनों केसेस के साथ, क्योंकि ये भी केस आपको ट्रू करना है। यहाँ पर तो ये दो सोल्यूशन हुए, बट अभी ये वाला और ये वाला फर्स्ट केस, ये वाला और दिस सोल्यूशन x ग्रेटर देन 3, तो ये हो जाएगा सेकंड केस। सो कॉमन सोल्यूशन है वेरी देयरफॉर कॉमन फिजिबल रीजन इज इसके साथ आपको कंपेयर करना है। तो फर्स्ट केस में मिलेगा आपको, देखिए फर्स्ट केस में क्या है, x ग्रेटर देन 3 होना चाहिए और x ग्रेटर देन 3 प्लस रूट 2 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, x ग्रेटर देन 3 प्लस रूट 2 लेंगे ताकि वो ग्रेटर देन 3 भी रहेगा ही। तो यहाँ पर हो जाएगा x ग्रेटर देन 3 प्लस रूट 2, दैट इज अलग लैंग्वेज में अगर लिखे तो 3 प्लस रूट 2 से लेके इंफिनिटी तक। सेकंड केस में क्या हो रहा है, देखिए x ग्रेटर देन 3 चाहिए और यहाँ पर क्या है x लेस देन 3 माइनस रूट 2, तो ये दोनों का कॉमन सोल्यूशन हो ही नहीं सकता, तो ग्रेटर देन 3 चाहिए हमें और यहाँ पर क्या आ रहा है लेस देन 3 माइनस रूट 2, तो इस केस में कॉमन सोल्यूशन नहीं होगा। सो नो कॉमन सोल्यूशन। फर्स्ट केस में और सेकंड केस में इसके साथ जब आपने कंपेयर किया तो ग्रेटर देन 3 प्लस रूट 2 ग्रेटर देन 3, तो हमने ले लिया ग्रेटर देन 3 प्लस रूट 2। अब ग्रेटर देन 3 और लेस देन 3 माइनस रूट 2, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं होगा। तो यहाँ पर नो कॉमन सोल्यूशन आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि चलिए ठीक है हम बाद में सॉल्व तो करेंगे, बट हमारा इस पर्टिकुलर फंक्शन को सॉल्व होने के लिए, डिफाइन होने के लिए, दिस इज द फिजिबल रीजन, मतलब x का आंसर जो है इस रीजन में होगा तभी वो वैलिड आंसर होगा इस इक्वेशन के लिए। ठीक, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं एंड बाय यूजिंग रिमूविंग लॉग अब हम इसे सॉल्व करेंगे। मैं इधर सॉल्व करता हूं। Next, now removing log on both sides. Removing log on both sides, what we'll get, x square minus 6x plus 7 is equal to x minus 3. And let us solve this further. x square, x इधर आपको हो जाएगा माइनस एक्स, तो माइनस 6x माइनस एक्स मतलब हो गया माइनस 7x, 7 प्लस 3 दैट इज 10 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इसका आंसर क्या हुआ, इसके फैक्टर्स आएंगे 5 और 2, x माइनस 5 x माइनस 2 इक्वल टू 0। आंसर हो गया x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 2। ये दो आंसर मिले मुझे, x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 2। but x is equal to 2 is not in feasible region,
इज नॉट इन फिजिबल रीजन। ये फिजिबल रीजन में नहीं है। फिजिबल रीजन कौन सा आपका 3 प्लस रूट 2 से लेके इंफिनिटी तक, और x इज इक्वल टू 2 जो है इससे छोटा नंबर हो गया। x इज इक्वल टू 2 3 प्लस रूट 2 से छोटा नंबर हुआ, तो ये फिजिबल रीजन में नहीं है। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 इज द वैलिड और प्रॉपर सॉल्यूशन। ये तो आपको जैसे हमने इसको सिंपली कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरीके से, बट आंसर कौन से मिले 5 और 2, बट 2 आपका वैलिड आंसर नहीं होगा, क्योंकि अगर आप आंसर 2 लेते हो, ठीक है, अगर आपने आंसर यहां से जैसे 2 लिया तो इधर क्या हो जाएगा log ऑफ 2 माइनस 3, log ऑफ 2 माइनस 3 मतलब log ऑफ -1 विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, log ऑफ -1 विच इज नॉट पॉसिबल। सो इसलिए हमें पहले तो डोमेन निकालना होता है। दिस इज फिजिबल रीजन मींस व्हाट इट इज, डोमेन ऑफ x। डोमेन मतलब x की कौन सी वैल्यू के लिए ये फंक्शन वैलिड है। सो दिस इज कंप्लीट इज डोमेन। यहाँ पर कुछ भी वैल्यू हो सकती है। हमने फिजिबल रीजन निकाल लिया, उसके बाद जब आंसर निकाले तो हो सकता है अगर दोनों आंसर यहाँ पर जैसे 2 नहीं आता था 4 आता था, 4 भी नहीं हो पाता था, 4 से भी आगे आएगा क्योंकि 3 प्लस रूट 2 है ना, तो रूट 2 इज 1.4 समथिंग, तो 3 प्लस 1.4 मतलब 4.4 के आगे 4.5 के आगे आपका आंसर जाएगा। तो यहाँ पर अगर 6 होता था मान लीजिए देन इट इज 2, लेकिन अगर 2 है so that is not the proper or valid solution। तो proper valid solution कौन सा होगा, x is equal to 5। जस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इस टाइप का हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, बट यहाँ पर फैक्टर्स आते थे, हम डायरेक्टली इस टाइप के फैक्टर्स लेकर के इधर सॉल्व कर लेते थे, बट यहाँ पर फैक्टर्स नहीं आए तो फिर हमने फार्मूला मेथड से किया। फार्मूला मेथड से हमें जो मिलते हैं वो रूट्स मिलते हैं, रूट्स अलग होते हैं फैक्टर्स अलग होते हैं, तो ये तो हो गए रूट्स, मतलब x इज इक्वल टू समथिंग, ये वाला एक आंसर, ये वाला एक आंसर। फैक्टर क्या हो गया फिर, तो इस वैल्यू को आपको लेफ्ट हैंड साइड पर लेके आना होगा, देन इट विल बिकम फर्स्ट फैक्टर। इस सेकंड वैल्यू को भी लेफ्ट हैंड पर लेके आना होगा, इट विल बिकम सेकंड फैक्टर। फिर दोनों फैक्टर्स का अपना जो लॉजिक है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, वो ले लिया, उससे आपने सॉल्व किया। तीसरा जो तरीका है दैट इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, अभी टाइम कम है तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डिस्कस नहीं कर पाएंगे, तो ठीक है कल करेंगे। अभी हम डिस्कस कर लेते कि इसको अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर नोट में ले लेता हूँ, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 ग्रेटर देन 0 बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक, अब कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए दो, मतलब ये प्लस 7 में उधर लेके जाऊंगा तो इधर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x ग्रेटर देन -7, 7 उधर गया -7 हो गया। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में देखिए, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म, आपको चाहिए थर्ड टर्म। नाउ दैट इज क्वाइट इजी, वैसे तो हम इजीली निकाल सकते हैं, बट एक मैं फार्मूला बता रहा हूँ, शॉर्टकट फार्मूला, हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर। तो इस केस में थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब -6 उसका स्क्वायर, तो गेट 2 3 जा 6 और -3 का स्क्वायर 9। तो जनरली थर्ड टर्म निकालते समय करना क्या है आपको, माइनस प्लस छोड़ दीजिए। ठीक है, 6 है, 6 का हाफ मैंने कर लिया, कितना हुआ 3, उसका कर लीजिए स्क्वायर, हो गया 9। So I will add this 9 on both the sides so that square will be completed. दोनों तरफ मैंने 9 ऐड कर दिया। Now this is the complete square of x minus 3. x स्क्वायर था तो x ले लिया, बीच में साइन अगर माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस ले लेंगे। 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, x माइनस 3 का स्क्वायर हो गया, ग्रेटर देन व्हाट 9 माइनस 7 मतलब 2। Again, this can be written as x minus 3 का स्क्वायर। ठीक, माइनस ये 2 में अगर इधर लेके आता हूँ वापिस, ठीक है 2 को फिर मैं वापस इधर लेके आ गया, तो हो जाएगा आपका -2 ग्रेटर देन 0। अगेन राइटिंग दिस इन दिस वे,
माइनस 2 मतलब √2 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। x माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर ग्रेटर देन 2 था, 2 को लेफ्ट हैंड साइड पर लाया, -2 हो गया, फिर -2 को लिख दिया √2 का स्क्वायर। अब हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो इट इज a प्लस b। a यहाँ पर हो गया a माइनस b, तो ये दोनों ब्रैकेट वही है जो अभी यहाँ पर मिले। x माइनस 3 माइनस √2, ये हो गया x माइनस 3 माइनस √2। दूसरा है x माइनस 3 प्लस √2, किधर x माइनस 3 प्लस √2। ठीक, सो इस तरीके से हो गया। अब ये तो हो गए दोनों फैक्टर, फिर आप आगे इसको इसी तरीके से आगे सॉल्व कर लेंगे। फॉर दिस अगेन देयर इज अ शॉर्टकट। देयर इज शॉर्टकट फॉर दिस। ये दो फैक्टर हमने लिखे ना, इन दोनों के लिए कुछ शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है? इफ x minus a into x minus b is greater than 0, ठीक है, x minus a into x minus b अगर greater than 0 होगा and a less than b होगा, a less than b होगा, तो हमेशा आपका जो आंसर होता है इस पर्टिकुलर का सॉल्यूशन, इस पर्टिकुलर इक्वेशन का सॉल्यूशन, इट ऑलवेज लाइज बिटवीन a एंड b। ठीक है, तो हम अलग तरीके से ऐसे भी लिखते हैं, ए एंड बी नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे x लेस देन a और x ग्रेटर देन b। या फिर इसको थोड़ा सा अलग तरीके से और लिख देता हूँ मैं, जस्ट अ सेकंड।